हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट के मैथ्स के वो क्वेश्चंस जो February 6 2023 के एग्जाम में आए थे। सो लेट्स चेक द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देयर आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 by 7 plus 7 by 2 is equal to. It's a simple fraction question. So you have to write first, we will write down the fraction. The fraction is 2 by 7 plus 7 by 2. Since both of them are prime numbers, so the LCM will become their multiples, like 7 2s are 14. So LCM will be 40. Now we will make the numerators a like fraction by multiplying it with 2 and this with 7. So 2 2s are 4 plus 7 7s are 49. It comes to be 53 upon 14. Now we will reduce it into a mixed fraction. 14 3s are 42 and 11 and 14. So this will be the right answer. If it is not, then as an unlike fraction, it will be 53 by 14. So let's check which option is given in the which answer is given in the options. So 311 by 14 is given in option number 3. So this is the correct answer. Next question says you have to arrange these numbers into a descending order. Descending order means from the biggest number to the smallest number. So let's check what are the numbers given. So we are given 20.2, then we have 2.20, then we have 2.022, then we have 2.02, then 2.002 and 0.222. इसको हम इक्वल कर लेंगे सारे फ्रैक्शन सारे डेसिमल पॉइंट्स को. नाउ वी विल चेक विच इज द हाईएस्ट नंबर. सो 20.2 is the highest. Then after that, all these numbers are in 2, and after the decimal, the numbers are 200, 22, 20, and 2. So they are already placed in a descending order. So the order will be the same as it is given in the first option, and the last number is a smallest number. So these all numbers are arranged in a descending order. So the first option will become the correct answer. Now the next question is the difference between the least common multiple of 4, 5, 6 and the least common multiple of 5, 6 and 10 is. So हम अलग अलग पहले 4, 5, 6 और 5, 6, 10 के एलसीएम्स हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे. पहले हम इसका निकाल लेंगे. 2, 2, 5, 3. सो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आए? 2 into 2 into 5 into 3. 2 2s are 4, 5 is 20 and 23s are 60. तो इसका एलसीएम आया है 60. अब इसका देख लेंगे. इसको हम पहले 2 से करते हैं. 2 5 2 3 and 2 5. फिर ये 5 से जाएगा. 5 1 3 and 1. So the multiples are 2 into 5 into 3. इसका एलसीएम आ जाएगा 5 is 15, 2s are 30. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ये 60 है, ये 30 है, तो 60 minus 30 is 30. So 30 is the correct answer, which is option number 1. Next question is the difference between the smallest 5-digit number and the greatest 3-digit number. The smallest 5-digit number will be 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, and the greatest 3-digit number will be 9 9 9. हमें क्या निकालना है? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस करना है. So let's find out the answer. ये आ जाएगा 1 0 0 9 9001 आ जाएगा. ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है what should be added to the sum of ये number to obtain this number. So first we will calculate the sum of these numbers. The numbers are 7 0 7 7 7 7 0 7 and 7 0 0 7. इसका सम निकालना है. ये हो जाएगा 21
7 to 9, 7 and 7 is a 21. अब इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। 2 एंड 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 7 में से इस जो सम आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 1 7 9 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर देखिए 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। So 5986, let's check it is given in the option or not. It is given in option number 2. 5986 is the correct answer. The next question says, in a school there are 320 students, out of which 1/4 are girls and the rest are boys. 2/3 of a number of boys are players. The number of boys who are not players. So हमें boys के respect में answer निकालना है and also those boys who are not players. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं? 320 दिए हुए हैं। अगर 1/4 गर्ल्स हैं तो कितने बॉयज होंगे? 3/4 बॉयज हो जाएंगे। तो पहले हम बॉयज की संख्या निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएंगे 240 बॉयज है। And out of these 240 boys, 2/3 of the number are players. और हमें क्या निकालना है? Number of boys who are not players. तो अगर 2/3 players हैं तो कितने non players होंगे? 1/3. अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 80. So 80 boys are non players. ठीक है, ये ऑप्शन है आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 will become the correct answer. Next question. A taximeter shows charges of rupees 40 for the first 2 kilometers of journey and rupees 50 for every subsequent kilometer traveled. Mohan pays rupees 190 as fare to travel from his house to his office. How far is his office from the house? ठीक है, तो उसने मोहन ने कितने किराया दिया है? 190 रुपीज से, और उस टैक्सी का रेट क्या था कि 40 रुपीज फॉर 2 किलोमीटर्स वो लेता है, प्लस 15 रुपीज वो पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो 190 दिया है, मतलब 2 किलोमीटर तो होगा ही। तो 2 किलोमीटर का वो 40 लेता है, तो कितने बच गए? 190 माइनस 40, 150। अब 150 उसको और देना पड़ा है, किस हिसाब से? 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कितना किलोमीटर वो और गया? 150 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 10। तो 2 किलोमीटर यहाँ पे है, प्लस 10 किलोमीटर और निकल के आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर्स। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 बिकम द करेक्ट आंसर. Our next question says, a bucket is 2/7 filled with water. Another 15 liter of water is needed to fill the bucket to its brim. What is the capacity of the bucket? So let the capacity of the bucket be x. ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहती है कि 2/7 ऑफ x में अगर हम 15 लीटर्स और जोड़ देते हैं तो वो पूरी बकेट को भर देता है, जिसकी टोटल वॉल्यूम है x. तो इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2x plus 15 sevens are 105 एंड ये 7 इधर आ जाएगा तो ये 7x हो जाएगा। तो 105 is equal to 7x minus 2x. 105 is equal to 5x. तो x will become 521. तो 21 लीटर्स जो है वो उस बकेट की कैपेसिटी है। ये ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train started from station A at 17:40 and reached station B at 22:15 on the same day. The time taken from the train journey for is, अब 17:40 से ये स्टार्ट हो रही है और 22:15 पे वो स्टेशन बी पे पहुंच जा रही है। तो 17:40 से 21:40 तक कितने घंटे ट्रेवल हुए? 4 आवर्स। अब प्लस
60 में इधर इधर लिख लेंगे कि यहाँ पे 40 से शुरू होगा और यहाँ कहाँ खत्म होगा, 15 पे खत्म होगा। तो 40 से 16 में कितना डिफरेंस है, 20 का, और 16 से 15 में कितना एडिशन है, 15 का। तो टोटल क्या हो गया, 35. तो 4 hours and 35 minutes will be the time taken by the train to complete his journey from station A to station B, और ये है ऑप्शन नंबर 3 में 4 घंटा और 35 मिनट। अगला क्वेश्चन है, a 90 centimeter long wire is bent to form a rectangle. If the width of the rectangle is 15 centimeter, what is its area? तो हमें width दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 90, और किसी इसको विड्थ मान, लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो, तो हमने लेंथ को 15 मान लिया है, प्लस बी ब्रेथ निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 इज इक्वल टू 30 प्लस 2b, ये 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b, तो ब्रेथ विल बिकम 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 30 इंटू 15, विच विल बिकम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, the number of degrees in 4 and 2/3 right angles is how much more than 395? तो पहले हम देख लेते हैं कि 4 2/3 राइट एंगल में कितने एंगल्स होते हैं। तो 4 इंटू 90 प्लस 2/3 इंटू 90, ये 360 प्लस 30 60, ये कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, अब 395 से वो कितना ज्यादा है, तो 420 माइनस 395, 525, तो 25 ज्यादा है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 25, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द शेप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट हैज 4 साइड्स। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, बना दिया है, इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, एंड ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब वो एक रेक्टेंगल हो, साथ ही साथ जब वो एक स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल भी बन सकता है और एक स्क्वायर भी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, following are the marks obtained by 25 students in mathematics. These are the marks obtained by the students. How many students obtained marks between 32 and 42? So हमें 32 and 42 के बीच के स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है। तो जब अगर हम बीच की बात कर रहे हैं, तो हमें ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कि 33 और 41 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 33 एंड 41, ये 36 है, 45 ज्यादा है, 47 ज्यादा है, 30 कम है, 22 कम है, 34 ज्यादा है, 35 ज्यादा है, 39 भी है, 40 भी है, 37 भी है, 28 नहीं है, 47 ज्यादा हो जाएगा, 31 कम हो जाएगा, 33 है, 38 भी है, 42 नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अपर लिमिट है, 44 ज्यादा है, 49 ज्यादा है, 39 है, 27 कम है, 40 आ रहा है, देन 35 भी है, एंड देन 43 ज्यादा है और 33 है। आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 32 और 42 के बीच में आए हैं।
इन क्वेश्चन में बस इस बात का ध्यान रखा करिए कि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को नहीं काउंट करना है। इसमें 1 मार्क्स 42 था जो हमारी अपर लिमिट थी। अगर हम उसको भी काउंट कर लेते तो आंसर हम 30 मार्क कर देते। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपर एंड लोअर लिमिट को जब हम इन बिटवीन की बात कर रहे हो तो अपर एंड लोअर बिटवीन के लिमिट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। और अगर उसको ना काउंट करें तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आ गई है 12, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ डीलर इन 6 डेज। ये इसके डेज है और नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द डीलर ऑन मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे एंड द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे, वेंसडे और सैटरडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का डिफरेंस निकालना है। तो मंडे को आए सोल्ड हुए हैं 28, ट्यूसडे को हुए हैं 25, वेंसडे को हुए हैं 37, थर्सडे को हुए हैं 23, फ्राइडे को हुए हैं 38 और सैटरडे को हुए हैं 25। अब इसको हम टोटल देख लेंगे कितना आ रहा है। 7 8 15 5 20, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 90 आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 3 8 8 16, 3 4 5 6 7 8 86। तो डिफरेंस कितना आया 90 माइनस 86 इज 4। सो 4 का डिफरेंस आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, observe the following pattern. 1 is equal to 1, 3 plus 5 is equal to 8, 7 plus 9 plus 11 is equal to 27, and 13 plus 15 plus 17 plus 19 is equal to 64. So next series में क्या आएगा? तो यहाँ पे देख ले, ये ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और हर एक लेवल में नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बढ़ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अगले वाले पे 5 ऑड नंबर्स होंगे और कहाँ से स्टार्ट होंगे 19 तक तो है ही, तो हम स्टार्ट होंगे 21 से। 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, 1 2 3 4 5। अब इसको हम टोटल कर लेंगे 7 एंड 16 5 21 24 25 2 4 6 8 10 12। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 125 और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो February 6 2023 के सीटेट एग्जाम में आए थे मैथ्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो and do like, subscribe, share and comment on my channel Learning Ladder Rise and Shine. Thank you.